Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I am Ashika and I'm an 11th grader, and this video is going to be another really productive study vlog. I will share my entire routine with you all and I will tell you how I spend the hours of my day to make it the most productive. It will be a late night study vlog क्योंकि स्कूल से आने के बाद 4 घंटे की मेरी कोचिंग होती है 4 to 8. After that 8 to 9 I take a break and then I start self studying, and I'll tell you how I plan the hours of my day to make them the most productive, and I'm sure that by the end of this video you will feel extremely motivated. So make sure to stick around till the very end. And अभी तक मैंने अपनी पूरी to do list नहीं लिखी है because I don't really know what all I'm supposed to be doing today, so I'll be writing that. And I haven't yet had my dinner, so I'll eat that before I start studying obviously. And हमारे Sunday को 2 टेस्ट हुए थे कोचिंग में, and एक दिन पे 2 टेस्ट हुए थे and they were like 3 hours each, and my marks in those tests are really not very impressive. I will share my marks with you all further on in the video. बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, but I have to analyze those tests, work on my mistakes and figure out my weak areas so that I can focus on them more, which is more important than the result anyways. So we'll be doing that. I don't think I'll have time to analyze both of the tests today क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मुझे, because I'll share my analyzing process with you all further in the video. And जो एक last week test हुआ था उसके भी कुछ questions मैंने अभी तक analyze नहीं किया, so I need to do that also, and that is obviously a priority for me क्योंकि वो literally last week था. But we'll figure all of that out together. Make sure to stick around. Now let's get started. सबसे पहले I'll have my dinner. ऑल्सो गाइज अभी मेरा फिजिक्स एंड मैथ्स का होमवर्क गॉट अपलोडेड, सो मुझे वो भी करना पड़ेगा. एंड मेरे लिए होमवर्क वगैरह ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो मैं उसको कंप्लीट करने के बाद ही कुछ और पढ़ने वाली हूँ. सो सबसे पहले विल बी डूइंग दैट. एंड दिस इज़ द आउटफिट फॉर टुडे. आई एम वेयरिंग दिस ग्रे शॉर्ट्स एंड दिस टी शर्ट. सिंपल सा आउटफिट है ये, बट आई रियली लाइक इट. इट मेक्स मी फील really fun, and honestly I am very productive when I feel my best, and I do feel my best right now. So let's just hope that we have a really productive study session. Let's hope that I don't fall asleep. And so मैं सब पहले कैमरा पे बोल रही हूँ ताकि मैं ये सारी चीज़ें ना करूँ, because I always end up falling asleep before completing all of my tasks. So also guys, हमारे स्कूल का सिलेबस इतना ज़्यादा जल्दी भाग रहा है. लिटरली वी आर अबाउट टू स्टार्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन फिजिक्स, एंड हमारा कोचिंग में बस वेक्टर स्टार्ट हुआ है. मतलब वी आर ऑन द फर्स्ट चैप्टर कोचिंग का, एंड स्कूल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे पहुंच गया. मतलब क्यों भाई, चिल करो, धीरे चलो, मतलब इतनी जल्दी किसको है यार. बट एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू रैंट अबाउट दैट बिकॉज इट हैज़ बिन बॉदरिंग मी a lot. But first of all I'll write down my to-do list. अभी फ़िलहाल तो मैंने बस इतना लिखा है, but there is literally more to do. ये मैंने क्लास रिवाइज़ नहीं किया ब्रेक में बिकॉज मुझे कुछ और काम आ गया था, तो मुझे ये अभी करना पड़ेगा. क्लास का रिविज़न एंड होमवर्क जो मेरा है ये सब मेरे लिए मैंडेटरी है करना. उसके अलावा बाकी की चीज़ें एडिशनल आई हैव टू. सबसे पहले आई हैड माई डिनर विच वॉज दाल एंड रोटी वाइल वॉचिंग फ्रेंड्स. एंड डिनर करने के बाद मेरा ब्रेक भी कंप्लीट हो गया था, तो उसके बाद मैं सीधा पढ़ने बैठ गई. एंड सबसे पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रही थी बिकॉज एज आई सेड बिफोर इट्स माई प्रायोरिटी. ऑल्सो गाइज व्हेन एवर यू आर डूइंग कोचिंग का होमवर्क, मेक श्योर तुम उसे पूरा खुद से करो. डू नॉट यूज़ अ कैलकुलेटर, डू नॉट यूज़ गूगल. जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं उनको बेशक तुम छोड़ दो, बट कहीं से चेक मत करो बिफोर यू सबमिट इट. एंड also before you leave any particular question, give it your all, give it your 100%. and अगर फिर भी नहीं होता है then leave it. Anyways, then my mom gave me milk, so I drank that. and अभी तक मेरे फिजिक्स के सारे questions नहीं हुए थे, but ये पीने के बाद I completed all of them. I just got done with doing मेरा फिजिक्स का होमवर्क. वी हैड टोटल ऑफ 11 क्वेश्चंस एंड मैं पिछले 1 घंटे से कर रही थी. एंड कुछ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट थे और सर ने आज इतने सारे जेई एडवांस के PYQs दे दिए थे होमवर्क में. बट मैंने 8 क्वेश्चंस करे आउट ऑफ 11, और बाकी की जो 3 थे मुझसे बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे. आई ट्राइड सो मच बट आई वॉज सिंपली नॉट एबल टू गेट दैम. एंड मेरी उसमें लिटरली 100% एक्यूरेसी. आई एम सो हैप्पी. दिस इज सो रेयर फॉर मी, दैट इज आई एम रियली हैप्पी एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू ऑल गाइज, डू यू सी दिस 100% accuracy. I'm so happy. हाँ, नाउ आई जस्ट नीड टू चेक द 3 क्वेश्चंस. एक तो ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं हुआ, बट एनीवेज नाउ आई विल चेक द सोल्यूशन एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं हुआ. दिस पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट.
make sure to always work on your mistakes. The winner is not the one who doesn't make mistakes, but it's the one who learns from them. I always remember this quote ताकि मैं demotivated feel ना करूँ जो मेरी गलतियाँ होए, and I always make sure to learn now from them. I was done with the first task of my to-do list and it honestly took me a very long time. And अब मुझे मेरा मैथ्स का होमवर्क करना था, मैं बस 3 क्वेश्चंस थे. So yeah, then I completed my maths का homework and I also revised class के notes, क्योंकि सर ने मतलब कुछ चीज़ें पढ़ाई थी और कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे जो क्लास में मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे. So after the class I looked at those questions again and without looking at the solution I did the solution in my brain and then I checked अगर जो process मेरे दिमाग में वो correct है या नहीं, and yeah, it was correct only. So this quick recall just helps me remember जो भी class में पढ़ाया हुआ था, and it's super duper helpful. You should try it out. So now I have to analyze my test. ये वाला टेस्ट एनालाइज करना है मुझे. ये कोई एडवांस का टेस्ट हुआ था हमारा, एंड आई थिंक इसमें 54 क्वेश्चंस थे जिसमें से मेरे इतने क्वेश्चंस करेक्ट थे एंड मेरा बैच रैंक 3 आया था. बट मार्क्स आर नॉट दैट इम्प्रेसिव इन दिस टेस्ट. ये कल वाला टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट लाइक 1 वीक प्रायर हुआ था. या एनीवेज आई नीड टू लुक एट दी क्वेश्चंस जिनमें मुझे डाउट था राइट नाउ. एंड अभी फ़िलहाल मैं मैथ्स के क्वेश्चंस देखने वाली हूँ बिकॉज मैं बाकी ऑलरेडी कर चुकी हूँ मोस्टली. ऑल्सो गाइज आई एम लिटरली सो टायर्ड ऑफ द टेस्ट इन माई कोचिंग. लाइक लास्ट 2 वीक्स से हर संडे मेरे 2 टेस्ट हो रहे हैं, वो भी 3-3 घंटे के, लाइक 6 hours ऑफ टेस्ट ऑलरेडी. आई ऑनेस्टली फील लाइक दे शुड कीप एक दिन में एक ही टेस्ट, क्योंकि पहला टेस्ट देने के बाद दूसरे टेस्ट देने के लिए मेरे अंदर बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं बचता है. एनी वेज आफ्टर कंप्लीटिंग द एनालिसिस I was listening to some songs to make myself feel better because I was honestly feeling really tired and really gloomy sa, because I just keep sitting in my room alone the entire day and it's honestly very depressing. So yeah, this helps me a lot. I am done with a bunch of stuff on my to-do list and अब ना मुझे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. वो मैं एनसीईआरटी से ही कर रही हूँ, बट जो एनसीईआरटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज है मुझे लिटरली नहीं आती फ़िलहाल. एंड द थिंग इज़, जब क्लास में ट्रिगर चल रहा था आई डिड नॉट रियली अंडरस्टैंड एवरीथिंग. आई रिमेंबर द फॉर्मूलाज बट आई डोंट नो ढंग से कि किसको कहाँ कैसे कब अप्लाई करना है. सो इसलिए आई डोंट नो अगर मुझसे हो पाएगा या नहीं. बट हमारा लिटरली टेस्ट होने वाला है ट्रिगर का. आई थॉट कि आज है टेस्ट, बट आज टेस्ट हुआ नहीं. एंड मुझे कल करना था मिसलेनियस एक्सरसाइज, मैंने कल किया नहीं बिकॉज आई वॉज procrastinating, I was tired and I slept. But now I think I'll be doing it. देखो मेरे को ना स्कूल के टेस्ट वगैरह में थोड़े से अच्छे मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट है ताकि मेरे टीचर्स वगैरह के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन्ड रहे. अदरवाइज दे वुड थिंक दैट आई एम नॉट स्टडिंग, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू. सी आई कंप्लीट स्कूल का पोर्शन इन माई ओन पेस. सो ऑब्वियसली जो करंट टेस्ट हो रहे हैं उसमें आई वोंट स्कोर दैट वेल बिकॉज माई प्रायोरिटी इज कोचिंग एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, नॉट क्विकली memorizing them and like practicing a few basic questions just like school level. That is obviously not the motive if you're targeting competitive exams. दुख तो मुझे अभी भी बहुत होता है if I don't score full marks, but I have learned to deal with it because I know I'll do it in the end. फिलहाल 12 बजने वाले हैं and I have completed the to-do list. मैंने miscellaneous examples करे हैं, exercise अभी नहीं करी. And I think tomorrow I'll try to wake up early and start studying. So yeah, we'll basically sleep जल्दी. And मेरे को अभी नींद आ भी रही है, so अभी पढ़ने का कोई फ़ायदा भी नहीं है because मुझे कुछ दिमाग में जाएगा ही नहीं. So yeah, I'm glad मैंने जो to-do list लिखी थी वो complete हो चुकी है, so we can go to sleep. So I woke up at 7 a.m. मैंने 6 का अलार्म लगाया था, बस 7 तक उठ गई. Hey guys, so I basically woke up at 7 and I spent कुछ घंटे, मतलब 1.5 घंटा almost, like doing morning का सारा stuff. And now I've had my breakfast and I'm all ready to start studying. And I have also written down my to-do list extra like add-ons जो मैंने कल लिखा था मैंने सारा कंप्लीट कर लिया. So yeah, I had a bunch of stuff to do right now, so that is why I wrote additional stuff in my to-do list. And I also need to wash my hair today, it's very greasy. But anyways, let's start studying. And yeah, इस होमवर्क की ड्यू डेट इज़ आज ओनली लाइक 3:30 बजे तक, तो इसीलिए इसको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. एंड ओ माई गॉड, देयर वर लिटरली लाइक 10 जेईई एडवांस के PYQs एंड मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ इन क्वेश्चंस को करने में बिकॉज दे वर सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस. बट आई ऑब्वियसली डिड नॉट गिव अप एंड आई मैनेज्ड
to complete them. So yeah, I'm very glad about that. सिर्फ एक काम करने में 10 बज गए almost, so I had to give my brain some rest. I took a break, watched Friends and ate a bowl of milk filled with chocos. After that मुझे physics के questions practice करने थे from HCV. I've honestly been enjoying kinematics so much and right now coaching में vectors चल रहा है, so I thought कुछ extra practice कर लेते हैं HCV से, and there were some decent questions, so yeah I practiced those and मैंने almost सारी exercise complete कर दी थी. उसके बाद मैं चली गई थी नीचे. Basically my friend came back from college after like months, so I was going to her house to meet her and literally इतना ज़्यादा sunny था outside, my skin was literally burning, but हाँ videos बहुत cute से आ रहे थे sun में, so इसीलिए I just filmed a bunch of clips. अब video almost ख़त्म हो गया है, तो जाके तुम पढ़ाई कर लो, and before you go make sure to subscribe to my channel अगर तुमने अभी तक नहीं किया है, and also follow me on Instagram. I'll put my ID on the screen. I really want to hit 5,000 followers before my summer break ends, and do let me know in the comments तुम्हें grade 10 के लिए और कैसे कैसे videos चाहिए. I think I'll be making a video on summer break को कैसे utilize करना है for my 10th graders, and अगर तुम्हें और किसी भी चीज़ में guidance चाहिए, do let me know. I'm always there for you. Thank you so much for all your support. I love you all always. I really hope this video made you feel motivated. Do subscribe. Bye bye.